Complex numbers part 3. In the previous video, we have already studied about the polar form and the exponential form of the complex number, but without the principal argument. In today's video, we are going to study about principal argument and Argand's diagram. First of all, the principal argument is just like the polar form and the exponential form. The only thing is that the theta over here has been changed. For example, in the quadrant 1, theta is tan inverse mod of y upon mod x. Whereas in the second quadrant, theta is pi minus tan inverse mod of y upon mod x. And likewise in quadrant 3, theta is minus pi plus tan inverse mod y upon mod x. And at last, in quadrant 4, theta is minus tan inverse mod y upon mod x. Let's see an example of polar and exponential form using principal argument. Here z is equals to minus root 3 minus pi, where x is minus root 3 and y is minus 1. The same formula goes over here. For r is equals to root of x square plus y square, which gives us answer 2. As we know, x is less than 0 and y is less than 0, the point lies in the third quadrant. And hence, as per the principal argument, theta is equals to minus pi plus tan inverse mod of y upon mod of x. Now, this formula is as per the principal argument. You need to study the formulas as per principal argument and without the principal arguments. Both are different. So, this is with principal argument. Now, as it is given that minus pi plus tan inverse is mod of minus 1 upon mod of minus 3, which gives us 1 upon root 3. And as we know that tan inverse 1 upon root 3 is nothing else but pi 6, then we have to just replace the values and we get minus pi plus pi upon 6. So how we can solve this? Minus pi plus pi upon 6. We can do this by making the denominator same. So just multiply and divide the other side by 6 will be same. The other side will be same. We get minus 6 pi upon 6 plus pi upon 6. Make the denominator same, minus 6 pi plus pi upon 6. So we get minus 5 pi on 6. Now how we have done this? Minus 6 pi plus pi. We have to put the sign of the greater number. The sign of the greater number is minus and minus 6 plus 1 is 5. So just write minus 5 pi over here. So hence the value of theta is minus 5 pi upon 6. Now we have to just put these values in the polar and the exponential form. Next step, we just have to put the values of the theta and the r in the polar and exponential form. One thing you should know that if cos minus theta is there, you will put the value cos theta. And if there is sine minus theta, you will put the value as minus sine theta. Now, as we know, polar form is r equals to cos theta plus I sine theta. Now see over here, r was 2. So write 2 cos minus 5 pi upon 6 because theta का value आया minus 5 pi upon 6 plus I and साइन थीटा क्या है अगेन माइनस 5 पाई अपॉन 6. एज हमें पता है कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो हमने यहाँ पे सिर्फ कॉस 5 बाय 6 लगाया. बट साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा इज
माइनस साइन थीटा, बिकॉज माइनस का वैल्यू होगा तो हमें माइनस से पुटअप करना है बाहर, तो हमने यहाँ पे प्लस की जगह माइनस कर दिया, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे माइनस आ गया। ना यहीं पे हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि लास्ट लेक्चर में मैंने ये बताया था कि अगर पोलर फॉर्म में आई माइनस में है तो एक्सपोनेंशियल में भी हम माइनस में ही पुटअप करेंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला दैट इज आर ई रेज टू आई थीटा। दैट वाज ऑल अबाउट द principal argument, exponential form, and polar form. Now, in the next part, we are going to see about what is Argand's diagram as per addition, subtraction, multiplication, and division. Now, एडिशन कैसे होता है? जो भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए होंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 एंड Z2, बस उसे प्लस कर देंगे, आंसर ये आएगा। सो अगेन यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला। एंड अब इस पे डायग्राम कैसे बनेगा? अब डायग्राम बनाने का सबसे इजी तरीका है, मान के चलते अगर मुझे एडिशन का आर्गेंस डायग्राम बनाना है तो मान के चलते यहाँ पे कि मेरा एज वी नो x1 इज नथिंग एल्स, एज वी नो x1 इज नथिंग एल्स, बट मेरे x एक्सिस पे क्या है, एंड y1 इज नथिंग एल्स, मेरे y एक्सिस पे क्या होता है। तो मान के चलो कि z1 इज 2 प्लस 3i और वी कैन से i3। सो x क्या है, x इज 2 एंड y क्या है, y इज 3। अब हमें ग्राफ देखना है, मान के चलो यहाँ पे मैंने ग्राफ बना दिया, प्लॉटिंग लगा देते, x यहाँ पे है 1 2 3 4, ये है x एक्सिस, वहीं पे y एक्सिस पे मैं यहाँ पे लगा देती हूँ, दिस इज मैं 1i 2i 3i 4i। अब देखते हैं x2 कहाँ पे है, x इक्वल्स टू 2 यहाँ पे है, y इक्वल्स टू 3i कहाँ है, वो यहाँ पे है। सो मेरा पॉइंट कहाँ पे आ गया, दिस इज माई पॉइंट। तो यहाँ से एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे स्ट्रेट, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, दिस इज माई z1 इक्वल्स टू, दिस इज माई z1 इक्वल्स टू 2 प्लस 3i, ये आ गया मेरा फर्स्ट लाइन। एंड ऐसे ही हम z2 की प्लॉटिंग कर सकते हैं, एंड z1 प्लस z2 की जो भी आंसर आएगी उसकी हम प्लॉटिंग कर सकते हैं। एंड लाइकवाइज वी कैन डू द सेम थिंग फॉर द सब्ट्रैक्शन वन। For the subtraction, we can see that again z1 is given, z2 is given, two complex numbers will be given, and then उसको माइनस करके फॉर्मूला कुछ ये आएगा, this will be the formula. The same thing you can do over here is z1 जो है सेम प्लॉटिंग जैसे हमने ऊपर एडिशन केस में किया था, वैसे ही यहाँ पे हम z1 की प्लॉटिंग कर सकते हैं, z2 की प्लॉटिंग कर सकते हैं, एंड z1 माइनस z2 की भी प्लॉटिंग हो जाएगी। बट इफ अगर z1 माइनस z2 दोनों नेगेटिव में आता है, अगर दोनों नेगेटिव में, अब हमें देखना है कि वो कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा। अगर मान के चलो मेरा जो कोऑर्डिनेट है x इज नेगेटिव एंड y इज पॉजिटिव, तो यहाँ पे कहीं पे वो डायग्राम बनेगा। बट यहाँ पे क्या करना है, आर्गेंस डायग्राम में सेम इक्वालिटी में हमें इन पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन करना है, ये लाइन यहाँ से ऐसे ड्रॉ करेंगे एंड देन बस ऐसे ज्वाइन कर देंगे, ये हमारा आर्गेंस डायग्राम बन जाएगा। व्हाट इज द डिविजन? डिविजन अगर करना है अगेन सेम, दिस इज z1, दिस इज माई z2, उसे डिवाइड कर देंगे and this will be the formula, that is x1 y2 plus y1 y2 upon x2 square plus y2 square plus I y1 x2 minus x1 y2 upon में x2 square plus y2 square। ये formula again you have to learn as it is, एंड अगर वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हुआ सो इट विल लुक लाइक दिस, एंड अगर पोलर फॉर्म की बात करें तो डिविजन विल लुक लाइक दिस। अब इसका डायग्राम कैसे बनाना है, सम सॉल्व करते टाइम पे हम देख लेंगे कि डायग्राम कैसे बनाना है इसका। मल्टीप्लीकेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मल्टीप्लीकेशन में अगेन z1 is given, z2 is given, multiplication
स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा Z1 इंटू Z2, ब्रैकेट में X1 प्लस I Y1, सेकेंड ब्रैकेट में होगा X2 प्लस I Y2। एंड लाइकवाइज इसे अगर हम री एडजस्ट करें, सो माय फॉर्मूला विल लुक लाइक दिस। सो ये वाला फॉर्मूला लर्न करना है, द स्टेप 2 फॉर्मूला। अब स्टेप 3 में इन्होंने क्या किया है, स्टेप 3 में इन्होंने बताया कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारा मल्टीप्लिकेशन कैसा दिखेगा। सो इट विल लुक लाइक दिस, एंड पोलर फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन कुछ इस तरह दिखेगा। नाउ एक चीज याद रखना है कि जब भी हम मल्टीप्लिकेशन का आर्गेन्स डायग्राम ड्रॉ करते हैं, वो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की तरह नहीं होता। यहाँ पे डिग्रीज होती है, ये डिग्रीज होती है जो हमें यहाँ पे प्लॉट करना होगा। अकॉर्डिंग टू डिग्रीज यहाँ पे प्लॉटिंग होगी, एंड इसी डिग्री को हमें फॉलो करना है। ड्यूरिंग सम्स वी कैन सी दैट कि आर्गेन्स डायग्राम मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन का कैसे बनाते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। नाउ यहाँ पे क्या बोला है, एड टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इट इज गिवन एज Z1 Z2, वैल्यूज दी हुई है। एज वी नो दैट Z1 प्लस Z2 इज X1 प्लस X2 प्लस Y1 प्लस Y2। यही सेम फॉर्मूला को हम यहाँ पे लिख लेंगे। लेट्स सी, X1 क्या है, X1 है 2, Y1 है 3। नाउ X2 क्या है, X2 है -1 एंड Y2 है 2। प्लॉटिंग कर लेते हैं। Z1 प्लस Z2 इज इक्वल्स टू, X1 है 2 तो 2 लगाएंगे, X2 क्या है -1, ब्रैकेट में लगाते हैं -1, ब्रैकेट क्लोज, प्लस I। Y1 क्या है, इट्स 3, 3 लिखते हैं, प्लस Y2 क्या है 2, ब्रैकेट क्लोज। अब देखते हैं, Z1 प्लस Z2 इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट ओपन करते 2, प्लस माइनस माइनस -1 प्लस I, 3 प्लस 2 कितना होता है 5, 5 लिख देते हैं। 2 माइनस 1 कितना होता है, 2 माइनस 1 इज 1, प्लस ये क्या हो जाएगा 5I। So hence we got Z1 plus Z2 as 1 plus 5I। अब देखते हैं कि आर्गेन्स डायग्राम में हम इसे कैसे प्लॉट कर सकते हैं। अब मान के चलो मैंने यहाँ पे एक ग्राफ बनाया, दिस इज माय ग्राफ, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे मान ऐसे ही प्लॉटिंग कर लेते हैं रैंडमली, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे प्लॉटिंग कर लेंगे 1I 2I 3I 4I 5I। यहाँ पे भी थोड़ा प्लॉटिंग कर लेते हैं, -1 -2, ठीक है। अब देखते हैं Z1 में क्या है, Z1 में x की वैल्यू इज 2 एंड y की वैल्यू इज 3। तो 2 एंड 3 देखना अब Z1 के लिए, x2, x में 2, ये x इक्वल्स टू 2 ये है मेरा, लेट्स चेंज द कलर, x इक्वल्स टू ये है मेरा, एंड y इक्वल्स टू 3, तो वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आया, ये प्लॉटिंग हो गई। यहाँ पे, यहाँ से लाइन ड्रॉ करते हैं ओरिजिन से इन स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पे देखते हैं, अब देखते हैं Z2 क्या है, Z2 इज माई -1, x इज इक्वल्स टू -1, y इज इक्वल्स टू 2। तो x इज -1 यहाँ पे आया, y इज 2 यहाँ पे आया, समथिंग ओवर हियर। ऐसे लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं, अगेन ओरिजिन से यहाँ पे ड्रॉ करेंगे लाइन, दिस इज माई पॉइंट, बस इतना ही, पॉइंट तक ड्रॉ किया, इट्स इनफ।
अब देखते हैं z की वैल्यू क्या दी है, z1 प्लस z2। z1 प्लस z2 क्या है, x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 5। तो x1 कहाँ पे है, यहाँ पे। y5 कहाँ है, यहाँ पे है। तो अगेन ओरिजिन से ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट तक। सारे पॉइंट्स मिल गए हमें, सारे के सारे पॉइंट्स, जो भी पॉइंट्स मिले, जहां पे हमें वो पॉइंट्स मिले हैं, जहां पे वो पॉइंट्स मिले हैं, इन पॉइंट्स को, ये पॉइंट्स को हम, जो हमारा z1, जो मेन वैल्यूज है z1 प्लस z2, उसके साथ प्लॉट कर देंगे लाइक दिस, लाइक दिस। सो हमारा डायग्राम कुछ इस तरह दिखेगा। डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा लेना तो डायग्राम सेम ऐसा बनेगा। फिर प्लॉटिंग कर देना, z1 प्लस z2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 5i, एंड z1 का वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर देना, z1 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3i, क्योंकि ये z1 है, एंड यहाँ पे है z2, तो यहाँ पे पुटअप करना -1 प्लस 2i। तो ऐसे हमारा डायग्राम बन जाएगा। ओके, वैल्यू क्या दिया था, z1 माइनस z2 इक्वल्स टू x1 माइनस x2 प्लस i y1 माइनस y2। अब देखना है, प्लॉटिंग करते हैं। x1 क्या है, लिख लेते हैं, x1 है 2, y1 है 3, x2 है -1, y2 है 2। प्लॉट कर लेते हैं ऊपर वाली इक्वेशन में, z1 माइनस z2 इज इक्वल्स टू, x1 है 2, लिख लो, माइनस x1 क्या है, -1, तो ब्रैकेट में ऐसे पुटअप करेंगे। अगर साइंस होंगे तो उनको अलग से ब्रैकेट में पुटअप करना है, बाकी फॉर्मूला वैसे का वैसे, प्लस आई, y1 कितना है, y1 कितना है, y1 इज 3, लिख लेते हैं, माइनस y2 कितना है 2, लिख लेते हैं। सॉल्व करते हैं ब्रैकेट्स को, 2 वैसे का वैसे, माइनस माइनस प्लस, प्लस 1 प्लस आई, 3 माइनस 2 कितना है 1, लिख ले। 2 प्लस 1 कितना होता है, 2 प्लस 1 इज 3, प्लस ये कितना हो जाएगा, 1 इंटू आई इज आई, या फिर 1 आई भी लिख सकते हो आप, इट्स फाइन। आई लिखो या 1 आई लिखो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। Now we can draw the diagram of the subtraction part over here. Lines draw कर लेते हैं, y axis and x axis. This is my y, this is my x. Randomly points को यहाँ पे लिख लेंगे, ये 0 है, 1 2 3 4 5, रैंडमली ऐसे प्लॉट कर देते, -1 -2। आई नहीं लिखा y एक्सिस पे तब भी चलेगा, आप सिर्फ नंबर लिख सकते हैं, -1 -2 -3। अगेन 1 2 3 4 एंड 5। अब देखते हैं, एक एक की प्लॉटिंग करते हैं। पहले z1 की, z1 क्या दिया है, z1 एस में x क्या है 2 है, y क्या है 3 है। तो x2 कहाँ पे, x2 यहाँ पे है, समथिंग ओवर हियर, वी कैन यूज डिफरेंट कलर, समथिंग ओवर हियर इज माय x2, ये है मेरा x2, एंड y3 क्या है, y3 यहाँ पे। तो देखते हैं ये पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, इनका पॉइंट इसको मैच करते हैं, वो यहाँ पे आ रहा है। तो ओरिजिन से इस पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे, डन। इसका नाम क्या है, z1 इक्वल्स टू 2 प्लस 3i, लिख दो। अब देखते हैं z2, z2 क्या है, इसमें x है मेरा -1, y है मेरा 2। अब देखते हैं, x -1 कहाँ है, यहाँ पर है, एंड y2 कहाँ है, यहाँ पे। मैच करते हैं, दोनों को मैच करके पॉइंट यहाँ पे बना, दिस इज माय पॉइंट। अब यहाँ से ये पॉइंट को ज्वाइन कर लेते हैं, ये क्या बन गया, z2 इक्वल्स टू -1 प्लस 2i। नाउ अब क्या देखना है, अब हम देखते हैं कि z1 माइनस z2 में वैल्यू क्या आया। x की वैल्यू वॉज 3, y की वैल्यू वॉज 1। अब x की वैल्यू 3 थी, y की वैल्यू कितनी है, 1 है। देखते हैं x3 कहाँ पे, x3 कहीं यहाँ पे आया, एंड y1 कहाँ है, यहाँ पे।
इन दोनों का पॉइंट कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा। हमें सिर्फ पॉइंट्स प्लॉट करना है, तो मैं बता दूं कि पॉइंट ऐसे प्लॉट करते हैं, दोनों का पॉइंट कहाँ पे मैच हो रहा है। ये जो बीच में लाइंस है इनको ड्रॉ नहीं करना है, ये बीच में जो लाइंस है इनको ड्रॉ ये नहीं करना है, डॉटेड लाइंस, सिर्फ पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं हमें। ये डॉटेड लाइंस हटा देनी है, सिर्फ पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं, सिर्फ पॉइंट्स। तो पॉइंट यहाँ पे आया। अब अगेन मैच करते हैं, ये है मेरा ओरिजिन, ओरिजिन से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, सिर्फ पॉइंट तक ही लाइन ड्रॉ करना है। हमने लाइन ड्रॉ कर दिया। नाउ ये लाइंस ड्रॉ कर लिए, 3 पॉइंट्स मिल गए। अब इनको बस ज्वाइन कर देना है डॉटेड लाइन से। यहाँ पे ज्वाइन हो गया ये, और यहाँ पे ये ऐसे ज्वाइन हो गया, बन गया हमारा आर्गेन्स डायग्राम फॉर सबट्रैक्शन। डन विद द टू सम। सिमिलरली सेम चीज यहाँ पे उन्होंने सेम मैनर में ड्रॉ किया है। दिस इज द वैल्यू ऑफ टेबल ऑफ टेन थीटा। फर्स्ट कॉलम में है टेन थीटा, सेकेंड कॉलम में है पाई, एंड थर्ड कॉलम में है डिग्री। ये काम आएगा when we will do the Argand's diagram for multiplication and division. So take a screenshot of this table and you have to learn this table. At least इतना तो पढ़ना ही है, up to 90 degree. इतना तो याद होना ही चाहिए values. This is the minimum. Like, so now the next question is about the multiplication of two complex numbers. What was the formula of two complex number multiplication? It was Z1 into Z2, which was equals to x1 x2 minus y1 y2 plus I x1 y2 plus y1 x2। अब देखते हैं यहाँ पे Z1 में x1 की वैल्यू क्या है, इट इज 2, y1 की वैल्यू है 2। Z2 में x2 की वैल्यू क्या है, इट इज 1, एंड y2 की वैल्यू इज -1। अब इसे पुटअप करते हैं इक्वेशन में। x1 है 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय x2 है 1, माइनस y1 है 2 मल्टीप्लाइड बाय y2 जो है -1, ब्रैकेट क्लोज, प्लस I मल्टीप्लाइड बाय x1 है 2 मल्टीप्लाइड बाय y2 है -1, प्लस y1 है 2 मल्टीप्लाइड बाय x2 है 1। नाउ सॉल्व करते हैं इसे। नाउ लेट्स सॉल्व इट। फर्स्ट वन, 2 into 1 is 2, -2 minus 1 plus 2, minus minus plus, 2 into 1 is 2, bracket close, plus I into 2 into -1 is -2, plus 2 into 1 is 2, ब्रैकेट क्लोज। अब देखते हैं 2 plus 2 4 plus I -2 plus 2 0। So answer is 4 plus I into 0 is 0, which gives us number 4। तो यहाँ पे आर्गेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए पहले हमें R निकालना होगा, दैट इज नथिंग एल्स बट मेरा मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2 मॉड ऑफ Z1 into Z2, यानी कि सबका R निकालना है, R1 R2 एंड R3, जिसको हम मॉड बोलते हैं। R इज नथिंग एल्स बट मॉड्यूलस, मॉड्यूलस किसका, Z का। एंड देन हमें थीटा भी निकालना है सबका, Z1 का भी थीटा, Z2 का भी थीटा, Z1 into Z2 का भी थीटा निकालना है, एंड उसकी पाई की वैल्यू निकालनी। अब जो ऊपर हमने टेबल देखा था पाई का, थीटा का एंड डिग्री का, पाई का वैल्यू से हमें डिग्री फाइंड आउट करना है, एंड ये जो डिग्री है वही डिग्री को हमें यहाँ पे प्लॉट करना है। दैट्स इट। है हमारा 10 इनवर्स क्या होगा, यानी कि थीटा फॉर Z1। Z1 क्या था, Z1 was +2i, Z2 was 1 minus I।
नाउ लेट्स सी, यहाँ पे एस Z1 में x इज पॉजिटिव एंड y इज पॉजिटिव, तो ये कोऑर्डिनेट 1 में आता है। एज ये कोऑर्डिनेट 1 में आता है तो यहाँ पे हम यूज करेंगे z, यहाँ पे यूज करेंगे थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स मॉड y अपॉन मॉड x। वो x क्या है, y क्या है 2, तो लिखते पहले tan इनवर्स y इज माई मॉड 2, x इज माई मॉड 2 इक्वल्स टू tan इनवर्स मॉड 2 अपॉन मॉड, ये होगा 1 अपॉन 1। tan इनवर्स क्या आ जाएगा, tan इनवर्स होगा 1, और इनवर्स 1 का मतलब होता है पाई अपॉन 4, तो यहाँ पे आ गया पाई अपॉन 4। यू हैव टू रिमेम्बर वन थिंग कि जब भी हम आर्गेन्स डायग्राम में थीटा ढूंढेंगे वी हैव टू यूज प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट्स वैल्यूज, यानी कि जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में हमने थीटा के वैल्यूज देखे थे वही वैल्यूज का यूज करना है हमें, सिर्फ यही वैल्यूज यूज करना है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का। जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में थीटा का वैल्यूज दिया था हमें वही वैल्यूज यूज करना है यहाँ पे थीटा फाइंड आउट करने के लिए, यानी कि tan इनवर्स के लिए। टू जो है यहाँ पे x इज पॉजिटिव दैट इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज नेगेटिव दैट इज लेस देन 0, जो कोऑर्डिनेट 4 में आएगा, फोर्थ कोऑर्डिनेट में आएगा ना। फोर्थ कोऑर्डिनेट में थीटा का वैल्यू इज माइनस tan इनवर्स मॉड ऑफ y अपॉन मॉड ऑफ x। वैल्यूज पुटअप करते माइनस tan इनवर्स y कितना है, y इज -1, x है 1, मॉड्यूलस से अब निकालते हैं माइनस tan इनवर्स, मॉड्यूलस से निकालने के बाद क्या हो जाएगा, दिस विल बी 1 अपॉन 1 which gives us tan inverse minus tan inverse 1, माइनस वैसे ही रहेगा। tan इनवर्स की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स -1 की वैल्यू, tan इनवर्स 1 की वैल्यू इज tan इनवर्स 1 की वैल्यू इज पाई अपॉन 4, तो आंसर विल बी माइनस पाई अपॉन 4, माइनस पहले से ही था and hence we got minus pi upon 4। Z1 into Z2 का भी थीटा निकालते हैं। As we know हमें ऊपर Z1 into Z2 की वैल्यू मिली 4 minus I into 0 which was 4। तो सिंपल टर्म्स में यहाँ पे x is 4, y is equals to 0। जब एक वैल्यू 0 होगी तो थीटा इज इक्वल्स टू 0 आएगा। एज यहाँ पे y 0 था तो थीटा इज इक्वल्स टू 0 होगा। अब यहाँ पे डिग्रीज देख लेते हैं, हमें प्लॉटिंग करना कैसे है आर्गेन्स डायग्राम के लिए, बट बिफोर दैट हमें आर भी निकालना होगा, Z1 Z2 का, Z1 इंटू Z2 का भी, Z का अलग से Z2 का अलग से। पहले Z1 का निकालते, दैट इज मॉड ऑफ Z1, इसका मतलब है R, R1 बोल सकते हैं इसे हम, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। देखते हैं व्हाट इज माई x1, इट इज 2 का स्क्वायर प्लस y कितना है, इट इज माई अगेन 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब 4 प्लस अगेन 2 का स्क्वायर मतलब 4। आंसर क्या आ गया, √8। √8 को हम लिख सकते 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, रूट अलग करते 4 मल्टीप्लाइड बाय √2। एज वी नो √4 का मतलब 2 होता है, सो आंसर इज 2√2। ये क्या आ गया, हमें मिल गया आर की वैल्यू, R1 बोल सकते हैं या फिर मॉड्यूलस Z1। Z2 की भी ऐसी ही वैल्यू निकालेंगे, Z2 यानी कि मॉड Z2, या फिर हम बोल सकते हैं R2। ये इक्वेशन क्या होगा, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, पुटअप करते हैं रूट ऑफ x2 कितना होगा, x2 इज माई 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है -1 स्क्वायर, सॉल्व करते 1 स्क्वायर यानी कि 1 प्लस -1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, रूट ऑफ 1 प्लस 1 कितना है 2, इसके आगे सॉल्व नहीं होगा तो आंसर इज √2।
हम Z1 Z2 की वैल्यू निकालेंगे। Z1 Z2 क्या है, 4 है। तो देखते हैं, √(x² + y² इज इक्वल्स टू x क्या है, 4 का स्क्वायर प्लस y कितना था, 0 था। √16, 4 का स्क्वायर है 16 प्लस 0 का स्क्वायर है 0। 16 प्लस 0 इज 16। तो √16 क्या है, 16 किसका स्क्वायर रूट है, 16 4 का स्क्वायर रूट है, तो आंसर इज 4। या फिर हम इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं जैसे यहाँ पे सॉल्व किया है। Z1 × Z2 की सिर्फ वैल्यू लिख दो, आंसर 4 ही आएगा। तो पाई 4 की डिग्री है 45 डिग्री। एज हमें दोनों ही Z1 Z2 का पाई/4 मिला, तो हम 45 डिग्री ही लिखेंगे दोनों जगह। करेंगे इमेजिनरी लाइन, दैट इज माय y एक्सिस, एंड रियल लाइन, दैट इज माय x एक्सिस। अब नॉर्मली प्लॉटिंग कर लेते हैं। एज हमें डिग्री निकालना है, 45 डिग्री का मतलब क्या होता है, हाफ ऑफ 90 डिग्री। तो रैंडमली मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लूंगी। अगर आप चाहें तो डी का भी यूज कर सकते हैं 45 डिग्री निकालने के लिए। 45 डिग्री मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया। ये है मेरा पाई/4। ये किसकी लाइन है, Z1 की लाइन। Z1 इज इक्वल्स टू 2 + 2y। और ये जो लाइन है ये मेरा R है, R यानी कि 2√2। और ये जो है दिस इज माई डिग्री यानी कि पाई 4, जिसको हम 45 डिग्री भी बोलते हैं। तो Z1 की यहाँ पे आ गए। नाउ मैंने क्वाड्रेंट 1 में क्यों लिखा Z1 की वैल्यू, मैंने क्वाड्रेंट 1 में क्यों निकाला Z1 का लाइन, बिकॉज Z1 जो है वहां पे x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। बिकॉज दोनों ही ग्रेटर देन 0 है, इसीलिए हमने उसे क्वाड्रेंट 1 में प्लॉट किया। वैसे ही अब देखो, Z2 में हमने जब देखा था, Z2 का आंसर क्या था, Z2 जो क्वेश्चन था वहां पे लिखा था 1 - i, जहाँ पे x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज लेस देन 0। तो एज x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज लेस देन 0 यानी कि कोऑर्डिनेट 4 आया। तो कोऑर्डिनेट 4 ये है, तो यहाँ से 45 डिग्री का लाइन बनाएंगे। डी का यूज कर सकते हैं इसके लिए। प्लॉट करते हैं, किसका लाइन है, Z2 का। Z2 इक्वल्स टू 1 - i। ये है मेरा -π/4। बिकॉज हमें आंसर क्या आया, -π/4, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -π/4। एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्यों है, बिकॉज Z2 में x ग्रेटर देन 0 है एंड y लेस देन 0 है, इसीलिए ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में आ गया। अब देखते हैं Z1 × Z2, इसका आंसर क्या है, वो सिर्फ 4 है। 4 क्या है, x एक्सिस पे। x एक्सिस पे 4 रेंडमली कहीं यहाँ होगा, तो बस मैं यहाँ पे 4 लिख दूंगी, Z1 × Z2 हो गया, डन। एंड ये जो लाइन था Z2 का, इसका आंसर क्या था, √2। तो यहाँ पे बस लिख देंगे √2, दैट्स इट। एंड ऐसे बनता है हमारा मल्टीप्लिकेशन का आर्गन्स डायग्राम। बस हम देख लेते हैं कैसे करते हैं। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिविजन। पुटअप कर देते हैं वैल्यूज। x1 कितना होगा, x1 है 2 इंटू x2 कितना है 1, पुटअप करते हैं, प्लस y1 कितना है, y1 है 2 मल्टीप्लाइड बाय y2 कितना है -1, ब्रैकेट क्लोज, प्लस i इंटू y1 कितना है 2 मल्टीप्लाइड बाय x2 कितना है 1, माइनस x1 कितना है 2 मल्टीप्लाइड बाय y2 कितना है -1, ब्रैकेट क्लोज, अपॉन x2 स्क्वायर। अब x2 क्या है, x2 है 1, तो 1 का स्क्वायर, प्लस y2 स्क्वायर। y2 क्या है, -1, -1 का स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 2 इज 2 इंटू 1 इज 2, 2 इंटू 1 इज 2, प्लस 2 इंटू -1 इज -2, प्लस I इंटू 2 इंटू 1 2, -2 -1 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 1 इज 2, 1 का स्क्वायर 1, प्लस -1 का स्क्वायर भी 1, 2 प्लस -2, प्लस I इंटू 2 + 2 4, 1 + 1
2। नाउ सॉल्व करते हैं आगे। 2 माइनस 2 इज 0 प्लस ये क्या हो जाएगा 4i अपॉन में 2। सो आंसर इज 4i अपॉन में 2 में 2। अब इसको क्या हम डिवाइड कर सकते हैं आगे। आंसर इज 8 से 1 सा ये 2 सा, तो आंसर इज 2i एंड वी गॉट 2i। जैसे हमने निकाला था मल्टीप्लिकेशन वाले सम में मॉड ऑफ z1 z2 एंड z अपॉन z2, ऐसे ही हम निकालेंगे यहाँ पे भी, यानी कि r ढूंढने से। तो सेम वैल्यूज सेम फॉर्मूला यूज करके आप r निकाल सकते हो z1 का z2 का एंड z1 अपॉन z2 का, एंड आपको गिवन वैल्यूज मिल जाएंगे। नाउ थीटा का भी सेम, आप थीटा का भी ऐसे ही निकाल सकते हैं जैसे हमने ऊपर निकाला था, एंड यू विल गेट दीज वैल्यूज। एज हमें पता है पाई अपॉन 4 इज 45 डिग्री, तो यहाँ पे लिख देंगे 45 डिग्री। पाई अपॉन 2 कितना होता है, पाई अपॉन 2 इज 90 डिग्री, पाई अपॉन 2 इज 90 डिग्री, तो 90 डिग्री होगा। अब यहाँ पे प्लॉटिंग कर लेते हैं। दिस इज माई इमेजिनरी लाइन, दिस इज माई रियल लाइन। ना देखते हैं एज z1 जो है वहां पे दोनों ही पॉजिटिव है, तो कोऑर्डिनेट 1 में आएगा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कोऑर्डिनेट 1 में प्लॉटिंग लगा दिया। z2 जो है वहां पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, यानी कि x इज पॉजिटिव एंड y इज नेगेटिव, तो ये आ गया कोऑर्डिनेट 4 में। एंड वहीं पे अगर मैं z1 अपॉन z2 की बात करूँ, वहां पे हमें सिर्फ वैल्यू क्या मिला था 2i यानी कि सिर्फ y एक्सिस पे आप 2 प्लॉट करोगे, तो यहाँ पे हमने प्लॉटिंग लगा दी एंड यहाँ पे डिग्री बस लिख देंगे, मार्किंग लगा देंगे, एंड दैट्स इट। दिस वाज ऑल अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर्स पार्ट 3।